Sir, I'm so proud to say that today 10,000 acres of 7-star infrastructure is completely allocated, completely utilized. And sir, the pace of activity is unpronounced. In the last 2 years, we've been able to sell this out to large OEM manufacturers, and it has been a lesson for all of us young entrepreneurs. So we thank the government of India, we thank the government of Maharashtra for endowing us with this wealth, sir. So from here, I'll now move to why Marathwada can be a very, very good, conducive defense ecosystem. Sir, all the companies that you see listed here have their manufacturing or are planning their manufacturing plants here. Sir, we have an extremely mature ecosystem. 30 years of legacy in precision manufacturing. So global OEMs like Toyota, Bajaj, Skoda are today all servicing. And in fact, Toyota Kirloskar Motors, JSW, Lubrizol, all of their plants have come under the leadership of Devendra Fadnavis, sir. Sir, we also have a very strong tier 1 supplier ecosystem, which has made us experts in CNC manufacturing, in tooling, in electronics, and the abundance of pharma manufacturing units gives us access to clean room technology as well. All of these technologies, sir, we feel make us a very mature ecosystem to even graduate to defense manufacturing. Sir, another great advantage is a lot of these units here have grown to get their second and third generation also in the business. This means they are all thinking about dual use technology in their manufacturing. They already have a very strong civil ecosystem. This is now a great time for them to contribute to India's Atmanirbhar Bharat mission for defense and get into defense manufacturing. Sir, a lot of MSMEs and SSI are in fact very keen to supply to defense. And one maybe soft request before I go down to my proposal is we would love to work closely with the defense department to supply to CSD, to supply to defense units, and any sort of hand-holding that is possible. I'm sure CMI can play a very big conduit role to make this possible. Sir, a good example of this is how CMI collaborated with Ministry of Defense for Srijan portal, and we listed close to 100 companies from this region on the Srijan portal. Sir, moving from defense ecosystem to conducive infrastructure, I again thank the government of India, thank the government of Maharashtra for making Chhatrapati Sambhajinagar one of the most popular manufacturing destinations. So today, Samruddhi Mahamarg is in true effect the center of prosperity for Chhatrapati Sambhajinagar. Sir, this has led to large mega OEM projects, national projects coming to our city. And it is done with a vision that we can also send large cargo from the city to JNPT port or all across India. Sir, second, the leadership of Fadnavis sir has been so visionary that he's thought one step ahead, and he said once the entire industry ecosystem will get furnished, we will need dry port, we will need facilities to be able to send the goods that we manufacture to all parts of India and to export them out as well. So sir, the Jalna dry port is a huge victory for us. Almost 500 plus acres has been allocated for this. And in phase 1 alone, we hope to move 10 million 20 feet equivalent units. So the infrastructure today makes us ready for the present and ready for the future. This gives us a sustainable mechanism to grow. Sir, a mature ecosystem of manufacturing, great infrastructure now needs conducive technical workforce. Sir, we have phenomenal government and private engineering colleges. Along with that, we have a lot of specialization institutes also. Institutes like IGTR provide us technical knowledge and support with respect to tooling. NILET with respect to electronics and electric manufacturing. CIPET with respect to plastics, and UDCT with respect to chemical technology. Sir, I'm very proud to say our city boasts a floating student population of almost 30,000 even today. So, and CMI plays a very, very evident role in upskilling the people that graduate as well. Sir, CMI today operates 2 large skill centers. One of it is Marathwada Auto Cluster. Sir, we benefit almost 1,100 SMEs in this auto cluster. Sir, we've had multiple parliamentary visits, and I'm very proud to say it is a self-sustaining, profitable skill center that we are running here.
Sir, our Devgiri electronic cluster is one of its time. We work very closely with the government of India, and we can also supply defense-based electronics from this particular sector. So third is a startup incubator called CMI's Magic, and I'm very proud to say that we are partnered as an incubator with IDEX as well. In fact, in the recently conducted DICE challenge, almost 100 odd applications came from us, and one of them also qualified at the revenue stage and one at the revenue stage. Sir, we as a chamber work very closely with the government to see how we can enhance the role that they have for this city. So last big advantage for us at the city is the existing defense supplier base that we have. Sir, one of the biggest victories maybe for the city is if we can leverage refurbishment as an opportunity. So as I mentioned, our mature legacy of precision engineering gives us expertise in electronics and battery management, missile carriage and radar systems, tank refurbishment, turret motors for radars and tanks. And in fact, we have number of units based in Chhatrapati Sambhajinagar who are today servicing defense. So a little help in this, especially on the refurbishment model, can make a big victory for this city, where we get an opportunity to also showcase our strength. So now I'll be a little selfish as the president of this chamber and come down to what is our proposal with respect to contribution to Atmanirbhar Bharat. Sir, we want to contribute. We want to play a big role in the Atmanirbhar mission of the government towards defense. These are our thoughts, and I'll lay them down on the table, sir. So the government of Maharashtra has an aerospace and defense manufacturing policy 2018 in which they have announced the role of defense parks. So our request here is if 500 to 1,000 acres can be allocated for defense park, this could be a very conducive environment. So we have two proposed locations this can be situated in. First is make it a part of the existing DMIC or the new Arapur MIDC. There are two advantages with this. One, this is a ready ecosystem. Second, there is ready infrastructure. So companies that come here will get the support of tier 1 to tier 4 suppliers. And because of the infrastructure, they won't have to wait till the setup is ready. So second, and we understand a lot of defense manufacturing units may also want things that are discrete, that may be exclusive. So under the vision of Samruddhi Mahamarg, where the idea was to develop industrial nodes around the Samruddhi Mahamarg, this could also be leveraged where certain areas near Chhatrapati Sambhajinagar could be identified along the Samruddhi Mahamarg, and those could be kept for defense-based parks. The advantage is the proximity to existing ecosystem in Chhatrapati Sambhajinagar will support their development. So the logical next step is for any project to become successful. It's not only the land, it's not only the infrastructure, but for kickoff, we need a mother unit, we need an anchor unit. So the advantage of Chhatrapati Sambhajinagar with respect to an anchor unit is the proximity to the various defense hubs here. Sir, we are very close to Nasik, Ahmednagar, Pune and Nagpur, which are all large defense manufacturing hubs. So a location like this in Chhatrapati Sambhajinagar would boost all of these defense hubs as well. Second, sir, I'm also proud to say that several anchor defense units have also visited Chhatrapati Sambhajinagar. Companies like Tata, Mahindra, Reliance, Lockheed Martin have surveyed this area as well and have an understanding of the ecosystem. Sir, our biggest USP with respect to a proposal is the quick turnaround time that we can bring along. So why do I say this quick turnaround time? Because A, we have the advantage of a mature ecosystem, and B, we have the advantage of a growth-based, DMIC-based platform which we can leverage. Sir, our proposal, we feel that both the asks should always go hand in hand. Sir, this is our strategic demand specifically.
So with this, to summarize a little bit about our meet, our idea is to propose a defense park at Chhatrapati Sambhajinagar. We recommend 2 locations. One is an existing DMIC and MIDC node. The second is a Samruddhi Mahamarg lode. And we strategically plan along with the anchor unit. Sir, our ambition is this is a growing ecosystem. This ecosystem has hunger. This is mature as well as expiring. We are the right destination because we aim at a quick turnaround. We assure this will be the fastest turnaround for Make in India initiative in defense. So we are there to follow in your leadership. Sir, my pitch I'll end before I come back to the next part of our discussion is a slogan that we have taken is Nivesh Niryat Kaushal se Samruddhi ki aur, and our belief is Viksit Marathwada se Viksit Bharat. Thank you so much, sir, for spending time with us. It is with great pride I take to introduce one of the most visionary leaders and someone who's not just a transformative leader, but his vision of Maharashtra's $1 trillion economy is making us youngsters to rear and go. I'll share 2 anecdotes. In the last 3 years, we have had multiple meetings with our Honorable CM Shri Fadnavis sir. And in one such meeting 2 years back, we had Atul Save sir, Karat sir, and the Aether Energies founders Swapnil and Tarun with us in Nagpur. And in that meeting, sir stressed upon the battery swapping facility. And this is 2 years back. And today, this has become an industry norm. This is the vision of Fadnavis sir. Sir, on a lighter note, if I had taken your advice that time, today I would here be standing before you and discussing investments in the state of Maharashtra. There is one more anecdote that I want to share. As youngsters, sir has always been very supportive to us. One such occasion when we requested sir for a meeting, and it was a heavy assembly session, and sir did accommodate us at night, and we kept our demands in front of sir. And you know, the one thing that was there on his face was the smile that he carries now and the enthusiasm that he has for all of us. With great applause, please welcome our CM, Devendra Fadnavis sir, to share his views of the state of Maharashtra. भारत सरकार के रक्षा मंत्री और भारत के एक बहुत ही सम्मानीय नेता परमादरणीय राजनाथ सिंह जी, आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर से पण आता राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ नाना बागडे, श्री अतुल सावे जी, जयकुमार रावल जी, डॉक्टर भागवत कराड जी, अतिशय सुंदर प्रेझेंटेशन ज्यांनी केलं ते सीएमआयचे अध्यक्ष अर्पित सावेजी, अथर्व नंदावत, उत्सव माचर, सौरभ हसानी, ऋषिकेश गवळी, या ठिकाणी उपस्थित आमचे सहकारी आमदार आणि संभाजीनगरच्या बिझनेस आणि इंडस्ट्रीमधील सर्व महत्वाची मंडळी मला समोर पाहायला दिसते. त्यामुळे सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं कई सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं और 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला और आप स्वयं ही मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस समय आए थे. और उसके बाद पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के हर शहर में, हर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में
मैंने बिजनेस और इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन किया, पर मैं आज संभाजी नगर में हूं इसलिए नहीं कहता। मैं हमेशा जब महाराष्ट्र में बिजनेस और इंडस्ट्री की बात आती है तो हमेशा कहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे संभाजी नगर के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में दिखती है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, सबसे ईगरनेस है। और अपने इलाके के लिए कई बार व्यक्ति अपने बिजनेस का विचार ज्यादा करता है, लेकिन यहां पर एक सामूहिक चाह मुझे दिखती है कि जो इस संभाजी नगर को आगे ले जाने के लिए और इसको एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनाने के लिए हमेशा काम करती हुई नजर आती है। और CMAI जैसी ये जो संस्थाएं है ये बहुत अच्छा कार्य इस सारे क्षेत्र में कर रही है। जब मैंने समृद्धि महामार्ग बनाने का निर्णय किया उस समय मैं हमेशा ये कहता था कि महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल मैग्नेट ये पुणे है, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट शिफ्ट होने वाला है और ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट ये संभाजी नगर और जालना होने वाला है। और शायद उस समय कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ी बड़बोली बात है, लेकिन आज जब हम DMIC को देखते हैं और हमने देखा कि 10,000 एकड़ की इंडस्ट्रियल एस्टेट खड़ी की और एक भी प्लॉट बाकी नहीं है और लाइन लगी हुई है, अभी 8,000 एकड़ और हम लोग एक्वायर करने वाले हैं। और आज यहां पर मौजूद है, लेकिन ये जो हूज़ यहां पर आया इसके पीछे दो कारण। पहला कारण आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने DMIC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया वो देखने के बाद कोई यहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। तो हम जब भी इंडस्ट्री वालों को संभाजी नगर लेकर आते हैं तो वो यहीं बस जाते हैं और यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री एक और चीज हमेशा देखती है कि यहां पर ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, यहां पर ट्रेन मैन पावर है कि नहीं, यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है कि नहीं। और संभाजी नगर के हमारे इंडस्ट्री ने इतनी अच्छी यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार की है कि आने वाले व्यक्ति को ध्यान में आता है कि मुझे जो चाहिए वो सारी चीजें यहां पर मौजूद है और इसीलिए यहां पर वो निवेश करके जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोयोटा के मामले में कर्नाटक उनको सारी चीजें देने को तैयार था, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर प्रयास कर रहे थे और उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उनको कम से कम 4 बार उन्होंने ये इकोसिस्टम यहां पर आकर देखी। और हमारे चाहे वो कराड़ जी हो, सावे जी हो, इनके से नेता हो या फिर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हो, ये भी उनके साथ पैरेलल इंटरेक्शन करते थे कि भाई आपको जो चाहिए हम देंगे और वो सारी इकोसिस्टम हमारे पास है। और एक प्रकार से कर्नाटक को ठुकरा कर उन्होंने महाराष्ट्र और छत्रपति संभाजी नगर को चुना। और मैं ऐसा मानता हूं कि वॉटरशेड मूवमेंट जिसको हम कहते हैं उस प्रकार की मूवमेंट रही है। आज धीरे धीरे महाराष्ट्र देश का ईवी कैपिटल बन रहा है और इस ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये संभाजी नगर के पास ही होगा, ऐसा तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज संभाजी नगर को अब नए तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पिच इन करने का प्रयास हमारे ये सारे मित्र कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि
जैसे उन्हें पता चला कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं तो वो कभी मौका गंवाते नहीं है। उन्होंने बराबर आपसे समय लिया, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। अब इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हमारे करने की है और बाकी आपका आशीर्वाद है, ये दो चीजें हो जाएगी तो ये प्रेजेंटेशन कामयाब हो जाएगा। तो जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है तो एक प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्री के क्लस्टर के लिए जो एक पार्क तैयार करने की बात है, निश्चित रूप से हम उसमें पहल करेंगे, महाराष्ट्र सरकार उसमें पहल करेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये जानते हो कि जैसा और आपने भी कहा कि एंकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जब जब एंकर आया तो हमने एंसिलरी का एक बहुत सुंदर क्लस्टर तैयार किया। जो आप लोगों ने ऑटो क्लस्टर तैयार किया वो तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक मिसाल है, इस प्रकार का आपने ऑटो क्लस्टर तैयार किया है। तो उस दृष्टि से इस एंकर को ढूंढने के लिए, उसको लाने के लिए निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की मदद लेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं ढूंढना तो हमें पड़ेगा, ढूंढकर उनको हमारे इकोसिस्टम से वाकिफ करवाना पड़ेगा। अंतिम आशीर्वाद के लिए हम हमारे रक्षा मंत्री जी के पास पहुंच जाएंगे और मेरा आज तक का अनुभव है, हम जब भी उन तक गए हैं हमको आशीर्वाद मिला ही मिला। एक विशेष प्रेम और विशेष स्नेह ये महाराष्ट्र के साथ भी रहा, हम सभी के साथ रहा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से बात को पकड़ा है और संभाजीनगर वाले जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मैं आज के इस मौके पर आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से मेक इन इंडिया में डिफेंस को एक प्रकार से ईज आउट किया गया और मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस समय ये घोषणा होती थी तो लोगों को लगता था ये होने नहीं वाला है, ये केवल घोषणा है। लेकिन आज हम देख सकते हैं, आपने भी यहां पर उसका जिक्र किया है, पुणे हो, नागपुर हो या फिर अपना अहिल्यानगर हो, ये डिफेंस क्लस्टर तैयार हो गए। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल क्रिटिकल इस प्रकार का भी जो वेपन है वो आज महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है और इसका पूरा जो श्रेय है वो भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को जाता है कि जिन्होंने इस क्षेत्र को इस प्रकार से एक शेप दिया कि आज आत्मनिर्भर भारत क्या है ये अगर देखना है तो हम हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को देखेंगे तो ध्यान में आता है किस तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़े हैं। तो मुझे लगता है उस आत्मनिर्भरता की दौड़ में डिफेंस के क्षेत्र में संभाजीनगर भी अब शामिल होना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है, हम जरूर इसमें पूरी मदद छत्रपति संभाजीनगर की करेंगे और जो जो भी संभव होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही आज के मौके पर मैं कहता हूं और फिर एक बार आप सभी की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, आपण ज्याप्रमाणे म्हणालात की या शहरात सगळ्यांना लोकांना बाहेरून इथे आणण्याची इच्छा असते, कुमकुमी असते, ती सर ती आमच्या मोठ्यांनी दिलेली पुंजी आहे। आम्ही सगळे यंगस्टर्स त्याचा प्रयत्न करतो ते पुढे नेण्याचा। अब हम स्वागत करेंगे ऐसे व्यक्तिमत्व का जो दृढ़ता, निष्ठा और दूरदृष्टि के प्रतीक है, जिनके नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति ने अभूतपूर्व गति और गौरव प्राप्त किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति को सशक्त और आधुनिक स्वरूप दिया है। हम गर्व और अत्यंत सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, जो अपने अमूल्य मार्गदर्शन और राष्ट्रनिष्ठ दृष्टिकोण से हम सभी को प्रेरित करेंगे।
राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी और महाराष्ट्र के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर इमेजिनरी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस, भागवत जी कराड़, यहाँ के सांसद अतुल सावे जी, मंत्री जयकुमार जी रावत, अर्पित सावे, और यहां मौजूद हमारे इंडस्ट्रीज के मित्रों। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि यहां प्रेजेंटेशन होगा और ये सब सारी चीजें होगी। मैं समझता था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहां काम करते हैं वो मिलेंगे और डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो हमारे सामने रखना चाहते हैं, और शायद उसका मुझे कुछ समाधान करना है। लेकिन आप लोगों ने हमारे हाथ में एक नया काम सौंपने की कोशिश की है। लेकिन सचमुच आप लोगों की जो हैंकरिंग है कुछ कर गुजरने की, मैं उसका स्वागत करता हूं, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत स्थानों पर गया हूं, लेकिन इस प्रकार से एक ललक, एक हैंकरिंग लोगों के अंदर और इंडस्ट्रीज को लेकर, और भारत इस मामले में सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, एक उनके अंदर तड़पन जो मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मैं उसकी सराहना करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब आपके यहां पूरी तरह से मैच्योर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लेकिन मैच्योर्ड डिफेंस इकोसिस्टम नहीं है। अब मैं यहीं बैठे बैठे मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। आप लोगों ने कोई ऐसा प्रपोजल मेरे सामने नहीं रखा है स्पेसिफिक जिसके बारे में मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन हां, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में वह अप्रॉक्सिमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम अप्रॉक्सिमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं, थोड़े ही समय। हमारा टारगेट है कि 2029, 2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएं। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है, बल्कि इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। और सेल्फ रिलायंट भारत को बनाने के लिए डिफेंस के मामले में कई मेजर स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं। मोर देन 500 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी की इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हम लोगों ने जारी कर दी है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि चाहे जो कुछ भी हो, यह सब सारे आइटम्स भारत में ही बनेंगे, भारत की धरती पर बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हम दुनिया किसी दूसरे देश से इसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे ही लगभग मोर देन 5,000 ऐसे आइटम्स हैं एरारूस, जिनके बारे में भी हम लोगों ने बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि हम उसको भारत में ही बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे। हम उसको किसी भी सूरत में इम्पोर्ट नहीं करेंगे। डिफेंस के मामले में भारत पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बन जाए, यह हम लोगों की कोशिश है। अब इस वर्ष का हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है वह अप्रॉक्सिमेटली 1,60,000 करोड़ का रहा है। और आप देखिएगा जल्दी ही हम इसको 3 लाख करोड़ तक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में करेंगे। हां, अब जहां तक संभाजी नगर का प्रश्न है, एकाएक मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जब पॉलिटिशियंस किसी भी मंच पर खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो तरह तरह के एश्योरेंसेस, तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते हैं, और यह सिलसिला आज से नहीं लंबे समय से चला रहा है।
और आपने ये महसूस किया होगा कि नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के संबंध में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। लेकिन हम लोग, हमारी गवर्नमेंट इस विश्वसनीयता के संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है। हम जो कहेंगे वो करेंगे। यहां पर हर प्रकार का पोटेंशियल हमको दिख रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इतना ही मैं केवल आश्वासन इस समय दे सकता हूं, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में आपका डेलीगेशन दिल्ली आए। हम अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको आपके साथ बैठाएंगे और आइए तो कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर आइए। हम देखेंगे उसमें कि क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। इस समय तो मैं इतना ही कह पाने की स्थिति में हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है। पहले तो मैं समझा कि यहां पर कुछ डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री होंगी, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेज हैं, उसके बारे में लोग बताएंगे। और मैं दो चार बातें जो मैं जानता हूं और जो मैं कर सकता हूं वह मैं लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन पूरा का पूरा अपने एक नया चैप्टर ही हमारे सामने खोल दिया है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। और देवेंद्र जी, आप जो चीफ मिनिस्टर का जहां तक सवाल है, मैं आज से नहीं वर्षों से जानता हूं, और जब यहां पर जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं जानता हूं। और इनको भी शायद मालूम होगा, किसी ने जरूर बतलाया होगा कि पहली बार जब मैं नागपुर आया था तो ये मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। उस समय ये नागपुर के साथ जनरल सेक्रेटरी थे, नागपुर के जनरल सेक्रेटरी। तो जो सज्जन हमें लेकर गाड़ी में चले थे उनसे मैंने कहा था, इस नौजवान के अंदर हमको पोटेंशियल दिखता है। अब आप ये कहेंगे कि आपने कैसे समझ लिया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा था, ये बात इनको भी मालूम है। जिस व्यक्ति से मैंने कहा था वो शायद उस व्यक्ति ने इनसे भी कहा होगा। अब वो कहीं कोई बड़े पोस्ट पर नहीं थे, उसमें जनरल सेक्रेटरी थे। और प्रायः देवेंद्र जी जो बात मुझसे कह लेते हैं और जो मैं कर सकता हूं उसे मैं कभी टालता भी नहीं। तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, मैं तो चाहूंगा कि जब आपका डेलीगेशन आए तो ये भी रहें। हम बैठेंगे अपने अफसर के साथ, क्या कर सकते हैं, कैसे कर, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं कुछ डिटेल में बोल नहीं पा रहा। आप मुझे बतलाइए, जहां तक हो सकेगा हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और डिफेंस इंडस्ट्री का है तो उसमें क्या है आपकी प्लानिंग, क्या करेंगे, अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं इस समय आपके प्रपोजल के बारे में। लेकिन मैच्योर्ड यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यह जानकर मुझे खुशी हुई। मैच्योर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के तहत जो लोग भी यहां पर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काम करेंगे। कुछ चैलेंजेज आपके अगल बगल की जो जिले हैं उनमें जो हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है डिफेंस को, उसको लेकर भी आप लोगों ने बताया है। देखेंगे, इस बार हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है, आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना विजन हमारे साथ शेयर किया। पर ये मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पर काफी सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो डिफेंस को सप्लाई कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल ओपन द फ्लोर टू द ऑडियंस, बट वी विल टेक इट इन अ वेरी प्रोसीजरल वे। एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो प्लीज अपने क्वेश्चंस एंड अपने विचार सर के साथ